Hello students, I Sushma Kataria from Suraj School Bhiwadi, and in this video we will discuss about the 11th class first chapter, The Portrait of a Lady, written by Khushwant Singh. As you know that in our previous video we have discussed about the relationship of grandmother and grandson in village as well as in city. Okay, and here we also discussed that very important point from this chapter, that what was the turning point between their relationship, that was when they shifted to city. Okay, so what kind of why it called as turning point? Because now the grandson doesn't have that much time to spend with his grandmother, because he have to go outside for the studies, and the grandmother was not able to help him in his studies because all the things were in English medium. Okay, and grandmother is educated, she was able to learn and write, but she was not able to read and write the English language, and because of that reason there was a difference, there was a gap start appearing in between the relationship of both persons. Okay, so when Khushwant Singh grown up in his age, he have to go outside for the university, and he's find that he want to go abroad for higher education. As you know that in our previous video we already discussed that grandmother was not happy with the music classes he was taking, but unfortunately she opposed that. She shows her opinion that she don't like these kind of thing, but the parents was not able to pay any kind of attention toward it, because they thought that it is a competitive season and competitive period, so the child should be efficient in almost every field. Okay, so and because of that reason they admit their child in the music classes. So that thing grandmother didn't like, because she don't like to be the child was taught to music classes. Okay, सो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर पता चल जाती है कि ग्रैंड मदर के उनको ये चीज़ पता चल गया कि उनके ओपिनियंस को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है. ये ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा होता है कि व्हेन अ सीनियर पर्सन इज़ देयर इन द फैमिली. ओके, सो एट दैट टाइम व्हेन यू आर taking any kind of decision regarding the family member, they have a hope in their mind, then definitely their opinion should be considered. But sometimes इट इज़ नॉट द फॉल्ट ऑफ पेरेंट्स, उनका पेरेंट्स का कोई फॉल्ट नहीं था यहाँ पे, लेकिन उनको क्या लगता था, बिकॉज आजकल का जो सिचुएशन है इट्स वेरी कॉम्पिटेटिव सिचुएशन, तो द चाइल्ड शुड बी एफिशिएंट इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड. ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न उन्होंने उस डिसीजन को लिया, बट ग्रैंड मदर को वो डिसीजन पसंद नहीं आया. सो उस दिन के बाद से उन्होंने अपना जो किसी भी चीज़ किसी भी मैटर में अपने ओपिनियंस को शो करना बंद कर दिया, बिकॉज उनको लगा कि उनके ओपिनियंस को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही. सो वो एक उनका एक जो कहते हैं ना कि गैप जो है फैमिली से, उनका गैप जो है वो अपीयर होना स्टार्ट हो गया बिटवीन द फैमिली एंड एज वेल इन द ग्रैंडसन एज वेल एज विद द ग्रैंडसन. ओके, सो जहाँ जब वो अब्रोड जा रहा था, एट द टाइम ऑल्सो शी डिड नॉट शो एनी काइंड ऑफ शी डिड नॉट शो एनी काइंड ऑफ रिएक्शन. उन्होंने एक ऐसा कुछ नहीं किया कि भाई वो रिएक्ट करे. सो यहाँ पे क्या दिखाया है, द ऑथर डिसाइड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज. ही वॉज श्योर दैट हिज ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट एट हिज डिपार्चर. ऑन द कॉन्ट्ररी, शी come to railway station to see him off, but did not show any kind of emotions. क्यों उन्होंने अपने इमोशंस को नहीं दिखाया? बिकॉज उनको पता था कि दैट उनके ओपिनियन का, उनके इमोशंस को कोई भी यहाँ पे कंसीडर नहीं करेगा. बिकॉज जब उन्होंने अपने ओपिनियन को शो किया था दैट शी डोंट लाइक दैट हिज ग्रैंडसन शुड बी गोन इन द म्यूज़िक क्लासेस, लेकिन उनको किसी ओपिनियन को किसी ने इम्पोर्टेंस नहीं दी. सो यहाँ पे भी उनको पता था कि अगर वो डिनाई कर भी देती, इवन देन ही विल मूव टू द अब्रोड. सो शी वॉज ऑब्जर्व्ड इन हिज प्रेयर. वो कहते टेलिंग द बीड्स ऑफ इट. वो क्या करते, वो स्टेशन पे भी वो क्या करे, शी वॉज कॉन्स्टेंटली डूइंग हिज प्रेयर. ओके, सो यहाँ पे शी साइलेंटली, दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन again, this is the important question. She silently kisses on her face. Okay, so that was the last touch, physical contact you can say. So author homecoming, and when he came back to his home, जब वो घर में वापस आता है तो क्या हुआ, after 5 year of his, देखो, after 5 year of his returning, the author did not find any changes in his grandmother. She was as old as ever. जैसे इसमें क्या कहते हैं कि वो in the very starting भी वो कहता है कि my grandmother was that much old that she can't be older than this. Okay, so this was the happiest moment for
फॉर हर, बट उनके लिए पूरे दिन भर का जो हैप्पीएस्ट मोमेंट था क्या था। अब देखो यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट, अब यहाँ पे शी वॉज शोइंग हर इमोशंस विद हिज ग्रैंडसन। कैसे? इन द इवनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एवर शी डिड नॉट प्रे। क्लियर? उन्होंने एक क्वेश्चन आता है, हाउ शी सेलिब्रेट द होम कमिंग ऑफ ऑथर फ्रॉम अब्रोड। ठीक है, 5 साल बाद जब उनका ग्रैंडसन वापस आता है अब्रोड से, तो उन्होंने उस चीज़ को कैसे सेलिब्रेट किया। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड नाउ द आंसर इज शी कलेक्ट सेवरल लेडीज ऑफ द नेबरहुड एंड संग सॉन्ग्स रिलेटेड टू द होम कमिंग ऑफ द वॉरियर्स। क्लियर? मतलब उसने प्रेयर नहीं किया, व्हाट शी डिड she collected the ladies of from neighbor and start singing a kind of, जैसे आप कहते हो ना कि कीर्तन करना और भजन गाना, तो उन्होंने लेडीज़ को कलेक्ट किया और वो भजन गाना स्टार्ट कर। जो किस तरह के भजन गा रहे थे, जब एक वॉरियर कोई युद्ध को जीत कर वापस आता है घर से, एट द टाइम जो गाने या भजन गाए जाते हैं, शी स्टार्ट सिंगिंग। सो शी हैड टू बी परस्यूडेड द टू स्टॉप सिंगिंग इन ऑर्डर टू अवॉइड ओवर स्टार्टिंग। हाउ, अब देखो यहाँ पे क्या दिखाया है कि शी हैव अ डीप कंसेंट, शी हैव अ डीप थॉट और फीलिंग्स फॉर द फैमिली, बट उस तरीके से वो उस चीज़ को प्रेजेंट नहीं कर रही थी, लेकिन उसने अपने लव को, अपने अफेक्शन को किस तरह से शो किया कि जैसे एक वॉरियर, एक योद्धा जो है आता है अपने घर में वापस एक लड़ाई को जीत कर, एक वॉर को जीत कर, जो जिस तरह के सॉन्ग गाए जाते हैं, शी स्टार्ट सिंगिंग दैट। ओके, सो उस दिन ही दो डायग्नोज, अब उसी दिन थोड़े दिन शाम को शी फेल इल, वो थोड़ा सा बीमार हो गई। तो उस टाइम पे जब उनको डायग्नोज किया, डॉक्टर ने दिखाया कि शी वॉज हैविंग अ माइल्ड फीवर बाय द डॉक्टर। ग्रैंड मदर न्यू दैट। अब देखो यहाँ पे क्या दिखाया कि ग्रैंड मदर को अपना कहीं ना कहीं अंदाज़ा हो गया कि दैट दिस वॉज माई लास्ट डे। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आता है, वाई शी बिहेव्ड इन अ वियर्ड वे व्हेन शी वॉज अबाउट टू डाई। तो यहाँ पे क्या दिखाया कि शी डिसाइडेड टू स्पेंड, देखो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन आ जाता है, शी डिसाइडेड टू die, sorry, she decided to spend the last few hours of her life reciting prayer and telling her beads. Clear? So soon her lips stopped moving, she died. अब देखो क्या है, उन्होंने क्या डिसाइड किया, she stopped talking with anyone। वैसे भी वो किसी से बात नहीं करती थी, ठीक है, उस दिन भी उसने क्या किया, वो जैसे शाम को ही बीमार हो गई, अगले दिन उनको पता चल गया, जैसे डॉक्टर ने बोला कि शी वॉज सफरिंग फ्रॉम अ माइल्ड फीवर, बट ग्रैंड मदर न्यू दैट हर एंड वॉज नियर, सो शी डिसाइड टू स्पेंड द लास्ट फ्यू आवर्स विद ऑफ हर लाइफ रिसाइटिंग द प्रेयर एंड टेलिंग हर बीड्स। क्लियर? ओके, सो इस टाइम पे ये चीज़ पता चल जाता है कि दैट समवेयर शी डोंट वांट टू स्पेंड हर टाइम विद द फैमिली मेम्बर। उन्होंने अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ किसी भी तरह की कोई बात नहीं की, उन्होंने ग्रैंडसन से कोई बात नहीं की, शी इज़ नॉट रेडी टू टॉक विद एनी वन। क्लियर? बट रीज़न उनका क्या है कि वो अपना पूरा टाइम जो है वो अपनी प्रेयर को देना चाहती थी, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न उन्होंने पूरा टाइम प्रेयर को दिया, एंड वो कांस्टेंट अपने रोजरी बीड्स को अपने हाथों, वो बेड पे पड़ी हुई थी, बेड पे लेटी हुई थी, एंड शी वॉज कॉन्स्टेंटली, उनके हाथ जो है वो अपने रोजरी बीड्स को काउंट कर रहे थे। उनकी जो प्रेयर, उनके लिप्स जो हैं जैसे वो कॉन्स्टेंटली साइलेंट प्रेयर में मूव होते थे, शी डिड द सेम। ओके, अब जो वो टाइम आफ्टरनून के टाइम पे जब वो स्पैरोज़ को खाना खिलाती थी, जो फैमिली जो, अब उनकी डेथ हो गई। क्लियर? आफ्टरनून टाइम पे जब सारी स्पैरोज़ को, तो स्पैरोज़ उस टाइम पे आई। क्लियर? बट नाउ द ग्रैंड मदर वॉज नॉट देयर टू फेड दम। अब ग्रैंड मदर वहाँ पे नहीं थी बिकॉज शी वॉज डाई। बट यहाँ पे एक बहुत ही अजीब सी बात हुई, क्या हुआ कि व्हेन उनकी जो डेड बॉडी को ज़मीन पे ऐसे लेटाया हुआ था, क्लियर, तो वहाँ पे जो स्पैरोज़ हैं वो उनकी पूरे डेड बॉडी पे लेटी हुई थी, पूरे डेड बॉडी पे उनके, जैसे वो जैसे फीड कराते टाइम जब उनको खाना खिलाते थे या उनको ब्रेड क्रम्स थ्रू करते थे, उस टाइम पे जैसे मैंने बताया था कि इन आवर प्रीवियस वीडियो दैट द स्पैरो यूज टू सिट ऑन देयर शोल्डर, ऑन देयर हेड, ऑन देयर लैप। क्लियर? इस टाइम भी वो उनके डेड बॉडी पे बैठी हुई थी, और समवेयर दे आर शोइंग, बट वो जो चहचहाने की आवाज़ होती थी वो उस टाइम पे देयर इज़ नो वॉइस। अब जो खुशवंत सिंह की मदर हैं, उन्होंने सोचा कि लेट्स गिव सम ब्रेड क्रम्स टू द sparrow, but not even a single sparrow ready to eat the breadcrumbs thrown by the mother। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, why? रीज़न,
बिकॉज यहाँ पे क्या दिखाया है कि एनिमल ऑल्सो डू हैव सम काइंड ऑफ फीलिंग्स, दे अंडरस्टैंड द फीलिंग्स, दे अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ अ ह्यूमन बींग. जैसे ग्रैंड मदर का क्या था कि वो हमेशा ब्रेड थ्रो करती थी स्पैरोज को एंड जो स्ट्रे डॉग्स होते थे विलेज में उनको. सो समवेयर दे अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ द लव. क्लियर, वो उस लव को फील कर पाते थे. तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एलिमेंट है जो खुशवंत सिंह ने शो किया, दैट एनिमल्स ऑल्सो अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स. क्लियर. बट यहाँ पे जो ब्रेड क्रम्स थे फेंके गए मदर का, तो वहाँ पे एक चीज़ क्या मिसिंग थी, ब्रेड क्रम्स थे, स्पैरोज थे, बट द फीलिंग्स वॉज नॉट देयर. जो जिस फीलिंग्स और जिस लव एंड अफेक्शन से जो ग्रैंड मदर स्पैरोज को फेड कराती थी, उस तरीके से जो मदर की ओपिनियन, वो सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के तौर पे उन्होंने किया. बट आफ्टर ऑन फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स नॉट इवन अ सिंगल स्पैरो रिटर्न बैक ओवर देयर टू हैव द ब्रेड क्रम्स. ओके, सो यहाँ पे अगर हम पूरे चैप्टर को देखें तो पूरे चैप्टर में हमें क्या नज़र आता है कि द ओनली one thing we have to understand the emotions of human being. and certainly जैसे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वी शुड अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ देयर इमोशन एंड देयर इमोशंस. and कहीं ना कहीं वी शुड गिव रिस्पेक्ट टुवर्ड्स देयर ओपिनियन, टुवर्ड्स देयर इमोशंस, एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ them. Clear? So I hope you completely understand the chapter, and the given assignment will be there in your homework. I hope you completely understand the chapter, and आप जो assignment दिए जाएंगे, you have to do that in your fair notebook. Clear? Thank you.